This is Indian Standard Time on Avaz South Asia. I'm Nirupama Subramanian, and I am going to be discussing today the protests by the Gujar-Bakherwal community and finding out the reasons for this protest. The J&K authorities have foiled a planned protest march by the Gujar-Bakerwal community from Poonch to the capital Delhi against legislation that is likely to be adopted in the ongoing winter session of Parliament to extend reservation under the scheduled tribe category to a community in Jammu and Kashmir called Paharis. So far, Gujjar Bakarwal are among the communities. There are a dozen or so communities in Jammu and Kashmir that have been declared scheduled tribes by the centre in 1989, and then this was expanded slightly in 1991. Of them, the Gujjar Bakarwal and the Sheena are Muslim, and the Gaddi and the Sippi are Hindu communities, Hindu tribal communities. Several leaders of the Gujjar Bakarwal community, including well-known faces such as Talib Hussain and Bilal Rashid, have been detained in the ongoing crackdown. The police also entered the Jammu University campus to crack down on a protest by the students of the Gujjar Bakarwal community on the campus, and some leaders were taken away from their homes in the dead of night. So the authorities are treating this as a serious law and order issue. At the center of this protest is a draft legislation called the Constitution Jammu and Kashmir Scheduled Tribes Amendment Bill, which was introduced in Parliament during the monsoon session. Along with this, there is another enabling legislation called the Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023. The contention of the Gujar-Bakerwal community is that the Pahari community is not a tribal community. It is, in fact, a group of 50 to 100 social castes of the Hindu and who are both Hindu and Muslims, and that these cannot be classified as tribal in any sense. Earlier in the day, I spoke to Zahid Parwaz Choudhary, president of the Jammu and Kashmir Gujar-Bakerwal Youth Welfare Conference. He said that the government is seeking to portray the Paharis as a linguistic group, therefore entitled to be included in the scheduled tribes. But this too is not the same. But he said that this does not make them a tribe. If they are, because then this could be actually included to any linguistic group. And if they are being described as hill tribes, then why not extend the category to include residents of other hill areas in Jammu and Kashmir? हाउस में लाया जा रहा है जिसमें सरकार जम्मू कश्मीर के पहाड़ी लोगों को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देना चाहती है। हम ये कहते हैं कि पहाड़ी वार्ड की कोई डेफिनेशन नहीं। सरकार पहले ये बताए कि पहाड़ी वार्ड की डेफिनेशन क्या है। अगर पहाड़ में रहने वालों को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देना है तो फिर डोडा, किश्तवाड़, रियासी, रामबन से जम्मू कश्मीर में बड़ा पहाड़ नहीं है कहीं। तो अगर सरकार ये कहती है कि पहाड़ी कोई लैंग्वेज है, तो फिर सबसे पहले हम ये कहते हैं कि जो कश्मीर के अंदर किसी लिहाज से भी मतलब ना तो ये पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, तो ना इनकी जबान जो है आपस में मिलती है। जब इन चीजों पर सवालात उठे तो सरकार ने उनको एथनिक ग्रुप डिक्लेयर कर दिया रातों रात। ओवरनाइट दे वर डिक्लेयर्ड एज एन एथनिक ग्रुप। तो फिर अब एथनिसिटी पे भी सवाल उठते हैं। तो अब इस पे एथनिसिटी पे भी सवाल उठते हैं कि एक सैयद की और एक ब्राह्मण की एथनिसिटी कैसे सेम हो सकती है। तो हम ये कहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर के अंदर 200 कास्ट, 200 कास्ट आर बीइंग इंक्लूडेड इनटू इट। इसमें मुसलमान लोगों की जो मुस्लिम आइडेंटिटी के पहाड़ी हैं, उनकी कास्ट कश्मीरी आइडेंटिटी के लोगों से मिलती जुलती है। जैसे आप मीर ले लीजिए, जैसे आप बुखारी ले लीजिए, जैसे आप मलिक ले लीजिए, जैसे तांत्रे ले लीजिए, परे ले लीजिए, डार ले लीजिए, मलिक ले लीजिए। सिमिलर कास्ट आर द पीपल ऑफ कश्मीरी कम्युनिटी। तो अगर आप पहाड़ी कम्युनिटी वाले मीर को देते हो,
अगर आप पुंछ के बुखारी को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देते तो श्रीनगर वाले का क्या कसूर है? इसी तरह से जो हिंदू आइडेंटिटी के लोग हैं, जो रजौरी पुंछ में पहाड़ी जो हिंदू आइडेंटिटीज के हैं, उनकी कास्ट है रैना, गुप्ता, वर्मा, शर्मा, महाजन। तो ये जो सिमिलर कास्ट है डोगरा कम्युनिटी की भी। तो अब तो डोगरा कम्युनिटी का क्या कसूर है कि कल उसको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस नहीं देंगे? हम तो ये आप कहते हैं कि ये बेसिकली कह रहे हैं मिक्सचर कि ये ऑफ लोग कास्ट है। ट्राइब्स नहीं हैं, अगर ये आप वर्ड नहीं है, अगर आप वार्ड पहाड़ी को सरकार जो है शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के अंदर एंटर करती है, तो डायरेक्ट 200 कास्ट जम्मू कश्मीर की इंटर हो जाएगी। हम्म। ये डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा कि हु इज ट्राइबल हु इज नॉट। तो ट्राइबल बन रहे जो एतराज। He argued that the government was doing this, that is, to including the Paharis in the scheduled tribe category to create a vote bank. The Paharis are 12% of the Jammu and Kashmir population. The Gujar-Bakerwals are 15%, according to the 2011 census. And after the delimitation exercise in Jammu and Kashmir last year, 9 seats were reserved for scheduled tribes, 6 of them in Jammu and 3 in Kashmir. These are districts that are dominated both by the Gujjar Bakarwals and by the Pahari community. These are basically the districts of Rajouri, Poonch, Riasi, Kishtwar, in Jammu, and Anantnag, Bandipora, Ganderbal, and Kupwara, and Gurez, which also Gurez is covered in Bandipora district. And these are all along the line of control. That is also a significant point to note. While earlier Pahadis could contest these seats when they were open category and hope to win because they are also a significant number, Choudhary said that after the reservation, the Pahari community was resentful of being excluded, and that the government, which did not want an angry but significantly large community to go against them, gave them the reassurance that the Pahadis would also be included in the scheduled tribe category. ये पिछले दिनों से, जब पिछले 3 सालों में जब इस आइडिया को जो था सरकार ने पब्लिक किया था, बीजेपी के लीडर्स ने, जब बेसिकली ये इस यहां से स्टार्ट हुआ कि जब हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला, कुछ ही टाइम पहले पहाड़ी लोगों को पीएसपी का, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल का एक सर्टिफिकेट दिया गया था, एक स्टेटस दिया गया जिसके अंदर 4% रिजर्वेशन उन लोगों को मिल रही थी। फिर उसके बाद जब हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली और सरकार ने कहा कि अब हम गुज्जर बकरवाल को पॉलिटिकली एम्पावर करना चाहते हैं, ये तो राइट 2019 के आफ्टर बाद दैट किया ये इन्होंने। इशू जो था वो स्टार्ट हो गया 2019 के बाद। तो उसके बाद ये इशू जो था वो स्टार्ट हो गया। फिर जो पहाड़ी लोग हैं, जो पहाड़ी लीडर, बीजेपी विद इन द इनसाइड, जो आम पहाड़ी था, ही वाज हैप्पी विद दैट कि उसको 4% पीएसपी मिल रहा है, तो वो उसको स्कॉलरशिप मिल रहा है, उसको उनके हॉस्टल्स हैं, उनको सारी प्रिविलेजेस मिल रही है, दे वर हैप्पी। तो अब जो पहाड़ी लीडर थे, जिसमें आप विबोध गुप्ता जी का कह लीजिए, जिसमें इकबाल मलिक जी जो बड़े पहाड़ी बड़े लीडर हैं, मुश्ताक बुखारी साहब जो सुरनकोट से हैं, जब ये लोग देख रहे कि हम कंटेस्ट नहीं कर पा रहे, तो इन्होंने इनसाइड बीजेपी में रिवाल्ट कर दिया कि भाई हम जो है वो रिजाइन करने जा रहे हैं, कि हमें अब जो है आपने सारी सीटें पुंछ रजौरी के अंदर, जम्मू रीजन में पुंछ रजौरी में रिजर्व कर दिए, तो आप बताइए हमारे लिए क्या है। तो फिर बीजेपी ने इनको बता दिया कि भाई आप डिमांड शुरू करिए, कि आप शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की डिमांड शुरू करिए, तो हम आपको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दे देंगे। तो इससे ये असल में स्टार्ट हुआ था। अब हम कहते हैं कि अगर ठीक है, सरकार हमारी हमें पॉलिटिकल एम्पावर करना चाहती है, तो जब ये इन लोगों को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल जाएगा, तो फिर हमारी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कहाँ होगी? पिछले 3 सालों से हम कंटिन्यू, जब हमें होना किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर बैठ के पढ़ते होना चाहिए था, हमारा कोई बंदा बिजनेस कर रहा होता, हम माल मवेशी का काम करते, हम पहाड़ों में आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लस्सी और मक्की खा रहे थे, दूध खा रहे थे, तो वहां से उतार के सरकार ने हमें सड़कों पे ला दिया। पिछले 3 सालों से वी आर कंटिन्यूली प्रोटेस्टिंग, इतने बड़े मैसिव प्रोटेस्ट हुए हमारे। पिछले ही दिनों हमने कश्मीर के अंदर महापंचायत की थी, जिसमें 20,000 प्लस लोग वहां पहुंच गए थे। जो गुजर बकरवाल कभी मीडोज पास्चोर से निकलता ही नहीं था, जो कभी अपने घर से मुश्किल से शहर में आता था, उसको आज सरकार ने सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया है। तो ये सब आज कल के डेट में हमारा ट्राइबल मार्च पिछले साल स्टार्ट हुआ 4 नवंबर को, 22 नवंबर को कालाकोट के अंदर बंद किया गया, रोका गया, फिर सरकार ने हमारे साथ डायलॉग इनिशिएट किया, फिर वहां पे कहा गया
कि अगर हम पार्लियामेंट हाउस में इस तरह का बिल लाते हैं तो हम दो सेपरेट ब्लॉक बनाएंगे। और जब फिर लास्ट टाइम वही बिल जब पार्लियामेंट हाउस के अंदर लाया गया, जो स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशंस थी, उसमें कहीं जिक्र नहीं था 2 ब्लॉक्स का। वो सिंपल है, उसमें यही था कि कोली पडरी ट्राइब के लोग, गद्दा ब्राह्मण्स और पहाड़ी लोग जो है इनको शेड्यूल ट्राइब के अंदर ऐड किया जा रहा है। बिल में ये क्लियरली मेंशन है, जब आप बिल पढ़ेंगे तो जो हमारे साथ प्रॉमिसेस किए गए होम मिनिस्टर किसने साहब ने वो आपको पूरे नहीं अश्योरेंस हुए। दिया था? किसने अश्योरेंस दिया था ये कि होम दो मिनिस्टर साहब दो ने हमारी कैटेगरीज, दिल्ली में, दो हाँ कैटेगरीज होम होंगी? मिनिस्टर साहब ने, यस होम मिनिस्टर साहब ने दिल्ली के अंदर जो थी इस तरह की मीटिंग हुई, उसमें एश्योरेंसेस लास्ट दिए। ईयर तो अब 23 वो में, जो दो 22 कैटेगरीज में। का मामला है, हाँ हाँ जी, तो अब हम ये कहते हैं कि जो सरकार कहती है कि हम जो सेपरेट ब्लॉक बनाएंगे, उसमें भी हमें ऐतराज आते हैं, क्योंकि देखिए रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की कोई प्रोविजन है ही नहीं। चाहे आप आंध्रा का केस देख लीजिए, इसी तरह का केस हुआ था, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का बिल लाया गया, वो स्टे हो गया, आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टे है वो केस। तो इस तरह के प्रोविजंस है कि कल जब इन लोगों को ऐड कर लिया जाएगा तो वो होगा। अब फिर जब हमने वो मार्च सस्पेंड किया, तो अब हम दोबारा जो थे, जब हमें लगा कि फिर वही बिल जो है सेम पार्लियामेंट हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया एंड दे आर गोइंग टू पास इट नो, तो फिर हमने एक बार एजिटेशन करना चाहा। कल हमारे लोग जो थे एक्टिविस्ट राजौरी में पहुंचे, शादरा शिव श्राइन से हमने स्टार्ट करना था। तो वहां पे बड़ी तादाद में पुलिस गई, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे लीडर्स को, हमारे छोटे छोटे यूथ को, छोटे छोटे लोगों को डिटेन कर लिया गया, पुलिस ले गई। Zahid said it was unfair to them after the promise of empowerment, of empowering the Gujjar Bakarwal and the tribal communities of JNK through the constitutional changes that were brought about in August 2019. And they thought that promise had been fulfilled with the reservation of assembly seats for them. He also said that he also spoke about how the community had rendered invaluable services to the security forces of the country by actually helping in counter-terrorist operations in along the LOC, as well as played an important role in helping the security forces in the Kargil war. इसलिए पिछले दिनों से, जब पिछले 3 सालों में जब इस आइडिया को जो था सरकार ने पब्लिक किया था, बीजेपी के लीडर्स ने, जब बेसिकली ये इस यहां से स्टार्ट हुआ कि जब हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला, कुछ ही टाइम पहले पहाड़ी लोगों को पीएसपी का, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल का एक सर्टिफिकेट दिया गया था, एक स्टेटस दिया गया, जिसके अंदर 4% रिजर्वेशन उन लोगों को मिल रही थी। फिर उसके बाद जब हमें पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली और सरकार ने कहा कि अब हम गुज्जर बकरवाल को पॉलिटिकली एम्पावर करना चाहते हैं, ये तो राइट 2019 के आफ्टर बाद दैट किया ये इन्होंने। इशू जो था वो स्टार्ट हो गया 2019 के बाद। तो उसके बाद ये इशू जो था वो स्टार्ट हो गया। फिर जो पहाड़ी लोग हैं, जो पहाड़ी लीडर, बीजेपी विद इन द इनसाइड है, जो आम पहाड़ी था, ही वाज हैप्पी विद दैट कि उसको 4% पीएसपी मिल रहा है, तो वो उसको स्कॉलरशिप मिल रहा है, उसको उनके हॉस्टल्स हैं, उनको सारी प्रिविलेजेस मिल रही है, दे वर हैप्पी। तो अब जो पहाड़ी लीडर थे, जिसमें आप विबोध गुप्ता जी का कह लीजिए, जिसमें इकबाल मलिक जी जो बड़े पहाड़ी बड़े लीडर हैं, मुश्ताक बुखारी साहब जो सुरनकोट से हैं, जब ये लोग देख रहे कि हम कंटेस्ट नहीं कर पा रहे, तो इन्होंने इनसाइड बीजेपी में रिवाल्ट कर दिया कि भाई हम जो है वो रिजाइन करने जा रहे हैं, कि हमें अब जो है आपने सारी सीटें पुंछ राजौरी के अंदर, जम्मू रीजन में पुंछ राजौरी में रिजर्व कर दिए, तो आप बताइए हमारे लिए क्या है। तो फिर बीजेपी ने इनको बता दिया कि भाई आप डिमांड शुरू करिए, कि आप शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की डिमांड शुरू करिए, तो हम आपको शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दे देंगे। तो इससे ये असल में स्टार्ट हुआ था। अब हम कहते हैं कि अगर ठीक है, सरकार हमारी हमें पॉलिटिकल एम्पावर करना चाहती है, तो जब ये इन लोगों को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिल जाएगा, तो फिर हमारी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कहाँ होगी? पिछले 3 सालों से हम कंटिन्यू, जब हमें होना किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर बैठ के पढ़ते होना चाहिए था, हमारा कोई बंदा बिजनेस कर रहा होता, हम माल मवेशी का काम करते, हम पहाड़ों में आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, लस्सी और मक्की खा रहे थे, दूध खा रहे थे, तो वहां से उतार के सरकार ने हमें सड़कों पे ला दिया। पिछले 3 सालों से वी आर कंटिन्यूली प्रोटेस्टिंग, इतने बड़े मैसिव प्रोटेस्ट हुए हमारे। पिछले ही दिनों हमने कश्मीर के अंदर महापंचायत की थी, जिसमें 20,000 प्लस लोग वहां पहुंच गए थे। जो गुजर बकरवाल कभी मीडोज पास्टोर से निकलता ही नहीं था, जो कभी अपने घर से मुश्किल से शहर में आता था, उसको आज सरकार ने सड़कों पे लाके खड़ा कर दिया है। तो ये सब आज कल के डेट में हमारा ट्राइबल मार्च पिछले साल स्टार्ट हुआ 4 नवंबर को,
22 नवंबर को कालाकोट के अंदर बंद किया गया, रोका गया। फिर सरकार ने हमारे साथ डायलॉग इनिशिएट किया। फिर वहां पे कहा गया कि अगर हम पार्लियामेंट हाउस में इस तरह का बिल लाते हैं तो हम 2 सेपरेट ब्लॉक बनाएंगे। और जब फिर लास्ट टाइम वही बिल जब पार्लियामेंट हाउस के अंदर लाया गया, जो स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशंस थी, उसमें कहीं जिक्र नहीं था 2 ब्लॉक्स का। वो सिंपल है, उसमें यही था कि कोली पडरी ट्राइब के लोग, गद्दा ब्राह्मण्स और पहाड़ी लोग जो है इनको शेड्यूल ट्राइब के अंदर ऐड किया जा रहा है। बिल में ये क्लियरली मेंशन है, जब आप बिल पढ़ेंगे तो जो हमारे साथ किसने प्रोमिस अश्योरेंस किए गए होम मिनिस्टर किसने साहब ने वो आपको पूरे नहीं अश्योरेंस हुए। दिया था? किसने अश्योरेंस दिया था ये कि होम दो मिनिस्टर साहब दो ने हमारी कैटेगरीज दिल्ली में, दो हाँ कैटेगरीज होम होंगी? मिनिस्टर साहब ने, यस होम मिनिस्टर साहब ने दिल्ली के अंदर जो थी इस तरह की मीटिंग हुई, उसमें एश्योरेंसेस लास्ट दिए। ईयर तो अब 23 वो में, जो 22 2 कैटेगरीज में। का मामला है, हाँ हाँ जी, तो अब हम ये कहते हैं कि जो सरकार कहती है कि हम जो सेपरेट ब्लॉक बनाएंगे, उसमें भी हमें ऐतराज आते हैं, क्योंकि देखिए रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की कोई प्रोविजन है ही नहीं। चाहे आप आंध्रा का केस देख लीजिए, इसी तरह का केस हुआ था, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का बिल लाया गया, वो स्टे हो गया, आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टे है वो केस। तो इस तरह के प्रोविजंस है कि कल जब इन लोगों को ऐड कर लिया जाएगा तो वो होगा। अब फिर जब हमने वो मार्च सस्पेंड किया, तो अब हम दोबारा जो थे, जब हमें लगा कि फिर वही बिल जो है सेम पार्लियामेंट हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया एंड दे आर गोइंग टू पास इट नो, तो फिर हमने एक बार एजिटेशन करना चाहा। कल हमारे लोग जो थे एक्टिविस्ट राजौरी में पहुंचे, शादरा शिव श्राइन से हमने स्टार्ट करना था। तो वहां पे बड़ी तादाद में पुलिस गई, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे लीडर्स को, हमारे छोटे छोटे यूथ को, छोटे छोटे लोगों को डिटेन कर लिया गया, पुलिस ले गई। Last year, too, the Gujjar Bakarwal community had taken out a huge march in the month of November. It began in Kupwara and it went on up to Rajouri and Poonch, and that is when the government reached out to them, and many of the leaders of the community, a group of leaders of the community, were taken to were flown to Delhi to meet Union Home Minister Mr. Amit Shah, and there they were given the assurance. They were given the assurance that the reservation that exists right now for the scheduled tribes would be firewalled from the inclusion of the Pahadis in the same category. But Zahid Parwaz Choudhary told me that this firewall does not exist in the bill that was tabled, that was introduced in the Lok Sabha last session, that is in the monsoon session of this year. He also said that if the government does not withdraw the bill, they would continue this agitation. And like the farmers had done, the farmers of Punjab had done, they had come out on the streets and they had marched into Delhi, and that they had laid siege to Delhi. He said the Gujar-Bakerwal community was prepared to do the same thing until the government actually withdrew the legislation. आप जब सरहदों पे देखोगे तो जब बमबारी होती है या इस तरह के हालात बनते हैं तो सिर्फ गुजर ही वहां पिसा जाता है। तो जितने भी बॉर्डर्स हैं, मुल्क की दिफा के लिए आज तक गुजरों का एक कंट्रीब्यूशन रहा है। इस चीज को सरकार को मानना चाहिए हमेशा से, चाहे आप वो करगिल वाला देखो, चाहे और बहुत सारे इंसिडेंट्स है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि गुजर हमेशा से नेशनलिस्ट भी रहे, हमेशा मुल्क की बात भी करते रहे। तो मैं इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं। He also claimed that this plan to dilute the tribal category by bringing in other communities was resonating across the country among tribal groups, and that their agitation would soon win the support of other tribal communities across the country. He said all tribal communities were concerned at what he argued was going to be a dilution of the scheduled tribe category, and he said that the BJP had in fact set up a huge problem for itself by doing this. जो गुजर लोग हैं हिंदुस्तान के, वो हमारे साथ खड़े हैं। जो कुछ सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो जम्मू से हैं या कश्मीर से हैं, तो वो भी हमारे साथ खड़े हैं, उन्होंने हमेशा हमारे साथ सपोर्ट किया है। तो जहां तक रह गया हमारी बिरादरी का ताल्लुक हिंदुस्तान से, तो हिंदुस्तान की भी बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो है हमारे मुल्क की, वो भी हमारे साथ खड़े हैं। ट्राइबल्स तो खड़े ही खड़े हैं, क्योंकि आपने देखा है कि मणिपुर में कैसे हालात बने हुए हैं। तो बाकी स्टेट्स में भी इस तरह के हालात बन रहे हैं कि जहां जहां भी अपर कास्ट को ऐड करने की बात हुई है, वहां रजिस्ट हुआ है। तो वो लोग हमारे साथ खड़े हैं। वो बहुत सारे लोग कम्युनिकेशन में वो चाहते भी हैं कि अगर इसको हम नेशनल लेवल का भी एजुटेशन बनाएंगे तो बनाएंगे, क्योंकि देखिए जब गुप्ता, वर्मा, शर्मा, जब पीर,
जब मलिक मिर्जा ये सारे लोग ऐड हो जाएंगे तो नेचुरली हर जगह मुल्क में तो हर जगह इस तरह की डिमांड्स उठेंगी ना।